I would request our principal sir to welcome our guests. We have among us our Judge 1, Honorable Brenton Singh Gupta, ex-MP of Rajya Sabha. Sir, we welcome you and give our audience a good round of applause. Thank you for coming, sir. Sure. Thank you so much. Thank you, sir. Honored to be here. Thank you so much, sir. Honored to be with your principal. Thank you. Definitely. Thank you. Next, Madam, would you like to take the oath or affirmation? affirmation, please. In which language would you like to take the affirmation? In Odia, please. ମୁଁ ଅନୁଷ୍କା ପାଢ଼ୀ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ଥା ଓ ଅନୁରକ୍ତି ରଖିବି ଏବଂ ମୁଁ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବି ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। Miss Umesha, who stands elected from Sitapur constituency in Jharkhand, will now take oath or affirmation. Madam, would you like to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? Hindi, please. मैं सुश्री उमेशा जो युवा संसद की लोक Madam, would you like to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? Chinese, please. I, Shahnaz, who has been elected as a member of Youth Parliament Lok Sabha, take the oath in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as established by law. I will uphold the sovereignty and unity of the country, and I will faithfully discharge the duties of the office that I am about to assume. Honorable
अध्यक्ष महोदया, मैं मेजर अर्जुन सिंह के त्याग और बलिदान के लिए उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। एक सैनिक का खो जाना वह पीड़ा है जिसे तो न ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता। मेजर अर्जुन सिंह हमारी सशस्त्र सेना के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। कर्तव्य के प्रति अड़ी प्रतिबद्धता, अटूट साहस और मातृभूमि के प्रति प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने साहस और देशभक्ति की ऐसी विरासत छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मेरी गहरी संवेदना शोक संतप्त परिवार के साथ है और संपूर्ण राष्ट्र हमारे वीर नौजवान के निधन पर शोक व्यक्त करता है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। I associate myself and my party members with a tribute to his guardian and the honorable member of the House. We deeply mourn the loss of Major Arjun Singh. His passing away, the nation has lost a valiant soldier who dedicated his life हल्का to सा the कर दो तो ठीक है, हल्का सा कर दो तो ठीक है। that the safety of our nation transcends all other considerations. Their sacrifice reminds us of the heavy price paid for our peace and security. Major Arjun Singh was not only a courageous officer but also a symbol of commitment and duty. His sense of responsibility, discipline, and unwavering courage will continue to inspire countless young Indians who dream of serving the nation. We join the rest of the nation in offering our deepest sympathies to the family of Major Arjun Singh. His contribution will never be forgotten. I request all members to rise and observe 2 minutes of silence in his honor. May his soul rest in peace. Now, Prime Minister, to introduce new minister, please. Speaker ma'am, I have pleasure in introducing to you and through you to the House, my colleagues, the new minister, Ms. Anushka, Minister of Labor and Employment. Ms. Archana, Minister of Agriculture. Now, the question hour begins. Question 101. Miss Khushbu, please. ना मस्जिद की बात हो ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना साल से है, मेरी नींद को दिक्कत
शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। कई ऐसे क्षेत्र में स्कूल न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से सीधा पूछना चाहूंगी कि सरकार। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि सरकार ने किसानों के लिए HYB बीजों की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे फसल की उपज में वृद्धि हुई है। सरकार की योजना यह है कि किसान खेतों में सिंचाई किसान तक डिजिटल की पहुंच बढ़ा रहे हैं। बेवजह के सवाल पर ढिंढोरा पीट पीट कर जो बन रहे हैं महान, बेवजह के सवाल पर ढिंढोरा पीट पीट कर जो बन रहे हैं महान, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि हमने किसानों को दी है एक डिजिटल पहचान। क्वेश्चन 102, मिस तमन्ना प्लीज। शिक्षा है सभी का अधिकार, जो हमसे छीने गए अधिकार उस पर है धिक्कार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज। भारतीय सरकार बस कहती है, ना करती कुछ भी। भारतीय आयात शुल्क में बढ़ती वृद्धि पर सरकार की क्या है स्थिति? माननीय अध्यक्ष महोदय, कई एमएसपीज का कहना है कि अमेरिका में टैरिफ बढ़ने से अनेक ऑर्डर कम हो गए हैं। इससे रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है। सरकार तत्काल क्या राहत दे सकती है? मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री प्लीज। अध्यक्ष महोदय, MSME स्मार्ट प्राथमिकता में है। सरकार ने छोटे नैतिकों को अधिक क्रेडिट गारंटी, नैतिक प्रक्रियाओं को सरल करके अनुपालन बोझ कम किया है और हमारे पास छोटे नैतिकों के लिए अस्थायी छूट के विषय में बातचीत की है। हमें विश्वास है कि ये कदम अल्पकालिक दबाव को कम करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज। क्या सरकार उठाएगी एक नया कदम या सरकार में नई कदम? माननीय मंत्री जी, एक सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए कोई विशेष राजनीति बना रही है? मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हम उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजनाओं को मजबूत कर रहे हैं, विनिर्माण क्लस्टर को आधुनिक बना रहे हैं और मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्वेश्चन 104, मिस मुस्कान प्लीज।
जहां युवा अक्सर अतिरिक्त घंटों तक काम करते हैं। मिनिस्टर ऑफ लेबर प्लीज। जी हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदया, इस नीति का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समान लाभ सुनिश्चित करना है। स्टार्टअप और निजी कंपनियों को भी गाइडलाइंस के अनुसार ही काम करना होगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस नीति के द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे काम समय के भीतर और अधिक उत्पादक बने और डिजिटल काम से बचे? मिनिस्टर ऑफ लेबर प्लीज। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों को टाइम मैनेजमेंट और डिजिटल वेलबींग के लिए तैयार कर रही है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज। ग्राम से ग्राम नेट की धारा, रिमोट काम में बंधी आशा, राइट टू डिस्कनेक्ट का लाभ सबको मिले, ना रहे कोई ख्वाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इस नीति से उन युवाओं को भी लाभ पहुंचेगा जो ग्रामीण या सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं और इंटरनेट के माध्यम से रिमोट कार्य कर रहे हैं? मिनिस्टर ऑफ लेबर प्लीज। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार डिजिटल अवसंरचना बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रही है ताकि सभी युवा इसका लाभ उठा सकें। No more supplementary question please. Now, 0 hour begins. Miss Bhumi please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के शून्यकाल में एक ऐसा मुद्दा लेकर खड़ी हूँ जो रात के सन्नाटे में जीतता है और दिन की भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। सरकार कहती है भारत 24 घंटे सातों दिन चलता है, पर रात में चलने वाला ये भारत कौन है? क्या कोई पूछता है? कौन है वो लोग जो अंधेरे का कफन ओढ़कर अपनी जिम्मेदारी की लाश उठाए सड़कों पर निकलते हैं? रात के सन्नाटे में सिर्फ खाली घर नहीं होता महोदय, वहाँ डर, परिवार और अंधेरा सब एक साथ पहरा देते हैं। और इसी अंधेरे में हमारे देश के लाखों नाइट शिफ्ट वर्कर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकलते हैं। कोई इसलिए कि घर चलाना है, कोई इसलिए कि मरीजों की जान बचानी है और कोई इसलिए कि उनके पास ना रहने का विकल्प नहीं है। एक डिलीवरी बॉय जिसको सिर्फ एक पैकेट ही पहुंचाना था, पर चाकू की नोक ने उसे घर की चौखट तक लौटने नहीं दिया। माँ ने दरवाजा तो खोला, पर वहाँ उनका बेटा नहीं, उसकी खबर रखी थी। एक नर्स जिसने रात रात घायल मरीजों की जान बचाई, वो अपनी सांसें बचाने की लड़ाई नहीं लड़ पाई। आंकड़े कहते हैं हर साल 1200 से भी अधिक नाइट शिफ्ट वर्कर लूट या हिंसा का सामना करते हैं। 300 से अधिक की मौत हो जाती है। उनकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने रात को निकले थे। और 700 से अधिक लोग ऐसी चोट के साथ जिंदा रहते हैं जो उन्हें ये याद दिलाती है कि वो गलत समय पर सही काम कर रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये किसी बहन का भाई, किसी माँ का सहारा और किसी परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। मैं इस सदन से पूछना चाहूंगी, आखिर कौन लौटाएगा उन बहनों को उनके भाई, उन माँ को उनका सहारा और उन मासूम बच्चों को वो पिता जो हर रात पूछते हैं, पापा आ जाएंगे ना? महोदय, सवाल ये नहीं कि आखिर गलती किसको देखता है। इसलिए आज मैं इस सदन से ये निवेदन करती हूँ कि राजकर्मियों की सुरक्षा, उनकी मदद और उनके परिवारों की चिंता को भारत की प्राथमिकता बनाएंगे। धन्यवाद। Miss Alisha please. सांसों में धुआं है, आंखों में जलन है। सांसों में धुआं है, आंखों में जलन है, हर तरफ फैली हुई बीमारी की थकन है। सांस हो कमजोर तो उम्मीद भी थक सी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदया, अंततः मैं कहना चाहूंगी कि सांस लेना कोई विलासिता नहीं, यह हमारा मौलिक अधिकार है। धन्यवाद। Mr. Dhanu please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के शून्यकाल में एक ऐसी सच्चाई लेकर खड़ा हूँ जिसे हम सब ने देखा है पर कभी माना नहीं। एक ऐसी पीड़ा जो घर की चार दीवारी में भी दम तोड़ देती है।
मर्द है तो चुप रहे, मर्द है तो सब सहे, मर्द है तो दर्द कहने की इजाजत नहीं। इसी सोच ने पुरुषों की सुरक्षा, उनकी मानसिक हालत, उनके आत्मसम्मान और उनके अधिकार सबको अंधेरे में ढकेल दिया। अध्यक्ष महोदय, यह सच मानना पड़ेगा कि समाज में पुरुषों को सिर्फ एक कमाने वाली मशीन समझा गया है। सुबह से शाम तक भागते भागते उनकी थकान, उनकी तकलीफ और उनका दर्द किसी को नजर में नहीं आता। मर्द रोए तो मजाक, मर्द टूटे तो कमजोरी, मर्द बोले तो बगावत, आखिर वो जाए तो जाएगा। हमने पुरुषों की चुप्पी को उनकी ताकत समझ लिया है, जबकि सच यह है कि उनकी चुप्पी के पीछे एक भीतर का पहाड़ छुपा होता है। अध्यक्ष महोदय, घरेलू हिंसा सिर्फ एक लिंग की समस्या नहीं होती, यह एक मानवीय समस्या होती है। लेकिन जब कोई पुरुष पीड़ा चाहता है तो समाज कहते हैं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, एक समाज तभी सुरक्षित होता है जब उसके बेटे और बेटियां दोनों सुरक्षित होते हैं। Yes, Miss Anshika, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में गंभीर विशेष अधिकार हनन का मामला लाना चाहती हूँ। मुझे कई घंटों तक रोके रखा गया, जिससे मैं समय पर संसद नहीं पहुँच सकी। इस प्रकार की बाधा मेरे संसदीय कर्तव्यों में सीधा हस्तक्षेप है। यह स्पष्ट रूप से विशेष अधिकार हनन है। मैं सदन से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती हूँ और उचित कार्यवाही की मांग करती हूँ। Have you given a notice of it earlier? I have already given notice of it 10:15 a.m. today. You cannot spring a surprise on me like that. I shall consider it when it's come to me. Now, paper to be laid on the table. Minister of Social Justice and Empowerment, please. Madam, I beg to lay on the table a copy of the annual report for the Thank you, Speaker Madam, for giving me this opportunity to call the attention of Home Minister regarding the situation arising out of recent Delhi bomb blast. दिल्ली बम ब्लास्ट आजकल की घटना नहीं है महोदय। इसकी साजिशों के तार बहुत पहले के हैं। विदेशों से बम बनाने के तरीके, उपकरण, सामान उनको कैसे मिल रहे थे? इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे सुरक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं ढील पकड़ी होगी, पर कैसे? अल्फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद बिल्डिंग 17 में 2 कमरे ऐसे थे जहां इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगातार मीटिंगें हो रही थी। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार कैसे नागरिकों की सुरक्षा को बलि चढ़ा सकती है और कैसे भारत में व्हाइट कॉलर टेलर मॉडल तैयार हो गया। इसका मतलब साफ-साफ है अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित है, नागरिकों की सुरक्षा से तो इसका दूर तक संबंध है। Home Minister, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सभी साथियों, आज मेरा दिल बहुत भारी है, फिर भी इरादा मजबूत है। आज मैं आपको उस बुद्धिदिल और भयानक आतंकी हमले के बारे में बताने आया हूँ, जो 10 नवंबर 2025 को हमारे देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुआ, जिसमें 15 बेकसूरों की मौत और 20 से ज्यादा लोगों का घायल होना सिर्फ खबर ही नहीं, यह हमारे देश की आत्मा पर लगा गहरा जख्म है। सरकार और सभी भारतीयों की तरफ से मैं दुखी परिवारों के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धमाके के कुछ मिनटों में हमारे गृह मंत्रालय की पूरी टीम हरकत में आ गई। हमने तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को जांच सौंपी, क्योंकि यह साफ था कि यह एक सोची समझी आतंकी साजिश है। NSG और FSL की टीमों ने मौके को संभाला और जांच बहुत तेजी से चल रही है। अर्थात हम मरने वालों के परिवारों को 10 लाख का मुआवजा देंगे और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। यह देश उनके साथ खड़ा है। दिल्ली में यह काम करने वाले को सजा मिलेगी। इससे पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश मिल जाएगा कि अब किसी भी आतंकवादी की भारत में ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारा पक्का इरादा है कि हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जब तक आतंक का आखिर भी खत्म नहीं हो जाता, हम नहीं रोकेंगे। Miss Khushbu, please. Thank you, Speaker Madam, for giving me this opportunity to call the attention of Defence Minister
Waiting for the announcement. Judges are waiting for the announcement. Thank you, Shri. Alright, so now we have our judges. Alright, okay. Will let you on the stage, sir? Sure. Fine. So now that you have given all your best performance, we have the results with us, and the judges. I would request the judges to kindly come on stage, and along with them our respected principal sir and vice ma'am. I saw them. Both the judges. Both the judges. Cannot be in the same level. Okay, we call our judge one, respected Rajan Sengupta sir. Please kindly announce. Please say no. Leave is granted. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Now, the House is adjourned to meet again on 16th December at 11 a.m. Waiting for the announcement. Judges are waiting for the announcement. Thank you, Shri. Alright, so now we have our judges. Alright, okay. Will let you on the stage, sir? Sure. Fine. So now that you have given all your best performance, we have the results with us, and the judges. I would request the judges to kindly come on stage, and along with them our respected principal sir and vice ma'am. I saw them. Both the judges. Both the judges. Cannot be in the same level. Okay. Okay, we call our judge one, respected Rajan Sengupta sir. Please kindly announce Good our. afternoon to all. Sri Pradeep Sengupta ji, ex-member of Parliament, Rajya Sabha and co-judge. Dr. Virendra Kumar, principal of the school. Srimati Jyoti Alabat ji, vice principal. Srimati Archana, teacher in charge, who is the architect of Youth Parliament, and under whose guidance Yeah, sure. As usual. बहुत बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। पहली बार आप लोग इसमें भागीदारी युवा संसद कार्यक्रम में भागीदारी लिए हो। 58 साल से चल रहे हैं। 58 साल के बाद इंदरपुरी का गवर्नमेंट विद्यालय ये इसमें भागीदारी लिया। इसमें इतना शानदार, इतना संसदीय प्रणाली से और वन ऑफ द मोस्ट एंथ्रॉलिक एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ co-judge for the tournament, the director of the MPA, Ministry of Parliamentary Affairs, and not associated for almost 30 years or so with this flagship scheme of the scheme of the Ministry of Parliamentary Affairs called Youth Parliament at a pan-India level, Mr. A.B. Acharya. My other co-judge who is absent, the Deputy Director of Education
Government of